Hello everyone, welcome to the biology classes. Today we are here to start with the topic biotechnology principles and processes. Although this chapter is very much related to the genetic engineering and hope you have a bit concept about the principle of inheritance and variation along with the molecular basis of the inheritance. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करें तो to understand this chapter, we have a bit concept about the DNA. Okay, DNA, RNA, a bit of replication, nucleotides, base pair. Okay, and about few kinds of the bacterias. Fine. And yes, of course, in between I'll give a bit of idea about the different terms that we are going to use. No matters, you already know or you don't know, and it's very fine to say I don't know. If you know everything, then what's the need of us, right? Okay, so first three things are used here, three words, three terms are here. One is the biotechnology, then principles, and last one is the processes. First we need to understand what this biotechnology is. If you see here, one is the bio, right, and second is the technology. ऐसा ही कुछ है, bio plus technology makes the term biotechnology. Now this bio word is related to the living organisms. What that living is? That living is plants, animals, microbes. Although microbes are not visible to our eyes, but still we know microbes exist. Okay, sometimes you have seen in the ads Lifebuoy का, Dettol का, इस तरह के जो soap के आते हैं तो they show few kinds of bacteria through that scope, right? Technology में basically क्या होगा? The machinery. Right? Technology में हम basically क्या use करते हैं? Machinery. This phone, this device, Apple, iPhone, ये सारी क्या है? These are basically the technology. The softwares, all the software, although that is the technology, right? We are landing on the Mars. We are knowing about the different planets. That is all due to the technology only. We are able to communicate. You are in such pandemic situation during the corona time, everybody is taking the online classes. That is all due to this technology only. अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, राइट, इस टेक्नोलॉजी को उठा के हमें यहाँ पे बायो पे अप्लाई करना है, राइट. ये जो पूरी की पूरी हमारी टेक्नोलॉजी, इसको मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है? बायो पे. बायो मीन्स लिविंग पे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. Technology is going to apply on the plants, on the animals, on the microbes, ultimately make the biotechnology. But why? Why to use the technology in the biology? Why to use the technology on the living organisms? Simple thing. Why we are using the technology? For our benefits, to make our life easy. है ना? पहले हम सारा का सारा काम मैनुअल करते थे तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती थी. Nowadays everything is on the phone. Just make a call, have the delivery of everything at your place. पहले हम अच्छे से तैयार होके जाते थे, स्कूल, क्लासेस, everything. But nowadays just sit in the front of the camera and have your all classes, right? तो बेसिकली टेक्नोलॉजी हमारे वर्क को इजी बनाती है. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी to the biology, to the living organism to make the products. First thing, to make the product. Like this phone is a product, this marker is a product. Okay. Then certain kind of the processes like COVID-19 का जो strain है, whether a person is COVID positive or negative, we are using a process PCR. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक पूरा प्रोसेस है, उसको हम अप्लाई करते हैं. उसको अप्लाई करने से हमें पता चलता है that this particular person is suffering from the COVID and this not. हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो that is a process. Okay. So by using this technology on the living organisms, we are making the products, we are making the processes to for the benefit of the mankind. और आप मानो ना मानो, इस दुनिया में हम कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली हम अपने फायदे के लिए करते हैं.
ठीक है। ब्रॉड लेवल पे अगर हम आज कुछ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे कोई भी चीज़ अगर हो रही है कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स पे, इस पूरे अर्थ के अलग अलग कॉर्नर्स पे, तो अल्टीमेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के भले के लिए ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि भला करते करते हम ये भूल गए हैं कि वी आर harming the nature, we are spoiling the environment, and sometimes we are harming the other organisms also, and this is not good. Okay, अपने फायदे के लिए आपको जो करना है करो, बट दूसरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Okay, let's come back to the topic. तो देखो, आप कर्ड खाते हो सब लोग, ठीक है, दही थोड़ी सी हम अपने घर पे बनाते हैं. In that we have the lactobacillus. So this is basically a part of biotechnology, making the curd from the milk by using the lactobacillus. Lactobacillus आपका क्या है? Microbe है. Lactobacillus is a microbe. Second, ब्रेड आप लेके आते हो, केक आप खाते हो, पेस्ट्रीज आप खाते हो, बेकरी के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट बीवरेजेस. बीवरेजेस में बेसिकली हमारे क्या होता है? वाइन, रम, विस्की, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं. हाउ दीज आर मेड? दे आर बेसिकली मेड बाय द सेक्रोमाइसिस सर्विसे. अभी इतना भयानक सा नाम क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्विसे. दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ईस्ट. ओके, ये ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस सर्विसे. तो यू नो दिस इज अ साइंटिफिक नेम. ओके, तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है? फर्स्ट वर्ड इज जीनस, राइट. पहला जो वर्ड होता है वो जीनस होता है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था हमें कैरोलस लिनानियस ने, है ना. कैरोलस लिनानियस ने हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. व्हाट ही सेड कि व्हाटएवर विद द साइंटिफिक नेम ऑन दिस अर्थ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मुझे साइंटिफिक नेम देना है, कम से कम उसमें 2 वर्ड होने चाहिए. उन 2 वर्ड में से जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो क्या बताएगा? अबाउट द स्पीशी. ठीक है. एंड इफ आई एम राइटिंग इट, अगर मैं लिख रही हूँ, दिस टाइम आई एम राइटिंग सेक्रोमाइसिस सर्विसे, तो आई विल अंडरलाइन इट सेपरेटली. इफ आई एम गोइंग टू टाइप इट, तो टाइप में आपके पास एक बोल्ड होता है, एक अंडरलाइन होता है और एक इटैलिक्स होता है. अगर आपको कोई वर्ड इटैलिक्स में रिटर्न मिलता है, पहला इटैलिक्स में, सेकेंड थिंग एक चीज और होगी, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और जो सेकेंड वर्ड उसके साथ इटैलिक्स में है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, तो वो क्या है? साइंटिफिक नेम है. ओके, तो यहाँ पे ईस्ट का ये साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्विसे. जो फर्स्ट आपका वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड आपका वर्ड है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड वाला जो लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के मैंने आपको 3 रूल बता दिए. मैंने ये भी बता दिया वो है गिवन दिस कैरोलस लिनानियस. तो ये भी आपका थोड़ा थोड़ा अगर कुछ टर्म्स आती है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, वो साथ साथ करते रहिए, रिविजन हो जाएगा, कुछ चीजें कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. Okay, this Saccharomyces cerevisiae can also be called as brewer's yeast. ठीक है, brewer's yeast. When this is used to make the beverages. Okay, it can also be called as baker's yeast. Baker's yeast. When we call it baker's yeast, when we are using it in the bakery product, cakes, पेस्ट्रीज बनाने के लिए जब हम इसका यूज करते हैं बिस्किट्स, तो ये बेकर्स ईस्ट बन जाती है. और जब इसी सेक्रोमाइसिस सर्विसे को हम बेवरेजेस बनाने के लिए यूज करेंगे तो इट बिकम द ब्रूअर्स ईस्ट. यहाँ तक क्लियर है चीजें? मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना ही बताया बायोटेक्नोलॉजी क्या है. ठीक है, बिट ऑफ कि अब जो है कर्ड जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ब्रेड या बेवरेजेस जो आप बना रहे हो दैट इज द फॉर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. अलॉन्ग विद दैट आई टोल्ड यू विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड हियर. तो लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया है और सेक्रोमाइसिस सर्विसे जो है हमारा ईस्ट है और वो फंगी है. ठीक है. ओके, अब ये चीज क्लियर हो गई है. व्हाई वी आर अप्लाइंग द टेक्नोलॉजी ऑन द बायोलॉजी, so that we can have the products and the processes for the benefit of the mankind. तो वहाँ पे हम organisms use कर सकते हैं. We can use the complete organism or we can have the enzymes from the organism. Organism में से आप enzyme निकाल लो, protein निकाल लो, उसको आप product और process बनाने के लिए use कर लो. That is also the biotechnology. Okay. अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको clear कर दूँ. ये जो आपने कर्ड बनाई ना, ये थोड़ी सी बनाई है. यू हैव माइट बी द 4 people एट योर होम और 10 people एट योर होम, तो आप इतना सा कर्ड बनाते हो. ठीक है, तो वो
एक स्केल ले सकते हो आप कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ पे, बट एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी कब होगा, व्हेन यू आर मेकिंग दिस कर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। जब मुझे लार्ज स्केल पे बनाना 1000 लीटर 2000 लीटर, तो वहाँ पे मुझे लैक्टोबैसिलस भी बहुत सारा चाहिए, राइट। तो आई हैव टू ग्रो दिस लैक्टोबैसिलस इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, राइट। आर्टिफिशियली मुझे लैक्टोबैसिलस बहुत सारा चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारी दही बनानी, दैट टाइम इट बिकम द बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इट इंक्लूड्स। एक्चुअल में ये तो थोड़ा सा क्या हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी काफी टाइम से चल रही है, बट ब्रॉड लेवल पे हम उसको समझ नहीं पाए थे। नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। वन इज GMOs। अब ये GMOs क्या है? GMOs इज genetically modified organism। We will discuss ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। जेनेटिकली का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल, हाँ, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया, वो उसका जेनेटिक मटेरियल था, उसकी बॉडी में था, हमने उसमें कुछ चेंज कर दिया। चेंज में हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। जेनेटिक मटेरियल यूजुअली आपका क्या है? DNA है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें बहुत सारी जीन होती है, राइट। अब उस जीन में आप जीन को निकाल दो, एक जीन कम होगी, मॉडिफाई हो गया, एक जीन एक्स्ट्रा डाल दो, मॉडिफाई हो गया, राइट। तो दिस इज बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग, व्हेन यू आर अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आपने उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, कोई जीन ऐड कर दी, कोई जीन निकाल दी, राइट। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मेकिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट यूजुअली नेचर में क्या होता है, बेबीज आर फॉर्म्ड इन द वॉर्म ऑफ द मदर, एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। बट द पर्सन, द कपल्स हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, वो नहीं बना पा रहे, कोई भी बहुत सारे उसके रीजंस है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद द बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो अब क्या होगा, हम लैब में बेबी बनाएंगे, ओके, आर्टिफिशियल कंडीशंस में वी आर मेकिंग अ ह्यूमन बेबी, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट बिकम द टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि लैब वाला बेबी, ठीक है। वी कैन मेक अ जीन, हम कोई भी जीन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की जीन हमने बनाई है। वाई वी मेक द इंसुलिन जीन? जो इंसुलिन होता है दैट इज रेगुलेटिंग द ब्लड द शुगर लेवल इन द ब्लड, ओके। शुगर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसकी लेवल को मेंटेन करना होता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, राइट। कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है वो तो भी हार्मफुल है, जितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए अगर वो उससे कम हो गई है वो तो भी हार्मफुल है। तो एक स्टैंडर्ड बेसिक होता है कि किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर रेंज है, वो उस रेंज में अगर अवेलेबल है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, पर वो कम होती है या ज़्यादा होती है तो वो हमेशा नुकसान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलिन के सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस चाहिए, तो ऐसे तो मिल नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इंसुलिन की जीन बना ली आर्टिफिशियली। इंसुलिन की आर्टिफिशियली जीन बन गई तो हमारे पास इंसुलिन आ गया, फिर इंसुलिन की इंजेक्शन आ गया और वो हमने डायबिटिक पेशेंट्स को इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही वी आर मेकिंग द DNA वैक्सीन अभी फिलहाल में हमने कोरोना की कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कितनी सारी, स्पुटनिक, सो मेनी वैक्सीन्स आर डेवलप्ड, तो DNA वैक्सीन हम बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन करेक्ट ए जीन, कुछ जीन्स हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे, मतलब एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी वो जीन आई नहीं, पेरेंट्स से इनहेरिट होके हमारे पास आई नहीं, ठीक है, या फिर उसने अपना फंक्शन एक्सप्रेस नहीं किया, एक गलत जीन, एक नॉन फंक्शनल जीन हमें मिल गई है, अब वो वर्क नहीं कर रही है, उस जीन के वर्क ना करने से मेरी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस जीन को मुझे ठीक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ADA में क्या है, एडेनोसाइन अमाइनेज, ओके, आई फॉरगेट। तो ये जो ADA होता है ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब वो जीन गड़बड़ में आ जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो नहीं बन रही है, वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो बाकी की जो आसपास की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम बॉडी का खत्म हो चुका है। अब मुझे उस जीन को ठीक करना है, ठीक है।
So that is correcting a gene. For example, we are correcting the ADA. So this is the basics of biotechnology. अब इसमें हम और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है. We will continue with this topic. अब next हमें discuss करना है principles, right? How the biotechnology emerges. बायोटेक्नोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दिस वन. होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ भी आई होंगी, आपने एंजॉय भी किया होगा. थैंक यू सो मच.